Assalamu alaikum class. In our previous class, we were discussing about the definition of organization, and as per definition, we defined that the organization is a place where at least two individuals they are doing the work just like the one unit. And then after that one, we discussed about the different perspectives of organizations. After that, we discussed about the behavior, and we defined the behavior that. The any action that can be observed, it's known as the behavior. Then after that one, we define the organizational behavior, and organizational behavior is the field of a study. By the help of it, we are able to understand the different behaviors those are present within the organizational behavior, and not only the study but also that how to improve their efficiency, and by the help of it, obviously, we are able to improve the graph of success related to any organization. So we can say that the organization and behavior that they are combining together is known as the organizational behavior. So then after that one, we already discussed about it, that what about the different contributing disciplines in organization behavior, in which is the first one is the psychology. Then we discussed about the sociology, uh, political science, and anthropology. And after that one, we discussed each and every discipline, and what about the details those are related to specifically with the organizational behavior. Then we discussed the organizational behavior model, in which we were talking about the individual behavior, group level, and organizational system level. Then in the last but the most, we were discussing about the scope of organizational behavior, in which we discussed that the impact of personality on performance, motivation of employees, of organization, leadership, structure of teams and groups, perception, development of soft skills, organizational structure, their studies and development, enhancement of individual and organizational development, individual behavior, group behavior, power and politics, attitude and the learning, organization design, job design, culture and environmental factor, movement of change, conflict and distress, organizational development, study and of emotions. हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था अपने लास्ट जो हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन था उसमें, जिसमें कि हमने बात की थी कि जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है, और उसकी मदद से हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन से लेकर हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी अपनी टीम को या स्पेसिफिक इंडिविजुअल को. हमारे पास व्हाट अबाउट द लीडरशिप स्टाइल, व्हाट अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज. इसके साथ साथ हमने बात की थी कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन, इसके साथ साथ ये कि हम व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, द सिटी ऑफ इमोशंस, यानी एज द होल जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेटअप में जो हमारे पास मौजूद हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट अबाउट द टुडेज लेक्चर. आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ से आगे कि जी हम किस तरह से जो है वो फर्दर मूव करें. अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स की. जहाँ तक ताल्लुक है इंडिविजुअल वेरिएबल्स का, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो एलिमेंट रिलेटेड है, दीज आर एज, जेंडर, पर्सनालिटी, इमोशन, वैल्यू, एटीट्यूड्स, एबिलिटी, परसेप्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड मोटिवेशन. और जहाँ तक ताल्लुक है ग्रुप वेरिएबल्स का, नॉर्म्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर, पॉलिटिक्स. और जहाँ तक ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के वेरिएबल का, दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एचआर पॉलिसीज. डिटेल में तो हम इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो हम
बात कर रहे हैं कि जी इंडिविजुअल लेवल पे हमें इम्पैक्ट आता है कि जी पर्सन की एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है। लाइक फॉर सपोज कि जी अगर ज़्यादा एज का पर्सन है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़, या अगर हम कहेंगे जी बहुत अगर ऐसा काम है कि लाइक अगर किसी ने कोई सामान वगैरह जो है वो लोड करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक यंग पर्सन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हमें कोई एक्सपीरियंस टास्क चाहिए तो उसके लिए हमें एज और एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड होगा। पर्सनालिटी टाइप क्या है किसी भी इंडिविजुअल की, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ओपन टू लर्न है, ये तमाम के तमाम फैक्टर ऑब्वियसली इम्पैक्ट लेकर आते हैं किसी पर्सन के लिए। इमोशंस, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है। इमोशंस को हमने डिफाइन किया था कि इमोशंस आर द इंटेंस फीलिंग्स। Is he or she has the ability to understand that what about the required emotion as per which is the required emotion as per requirement of the situation। उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसकी नॉर्म्स क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके अंदर किस चीज़ की सलाहियत है, व्हाट अबाउट द एबिलिटी, परसेप्शन क्या है, वो किस तरह के डिसीजन या फैसले ले सकता है, और वो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किन बेसिस पर लिए जा रहे हैं, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस हद तक बेहतर साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि वो कितना मोटिवेटेड है और किस हद तक जो है वो उसके अंदर जो कोई भी टास्क को कंप्लीट करने की, यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो उसके अंदर कोई भी टास्क कंप्लीट करने की या किसी भी काम को लेकर आगे बढ़ने का जो मोटिवेशन है वो कितना ज़्यादा मौजूद है या नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप वेरिएबल्स की, तो नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो नॉर्म्स हमेशा ताल्लुक होता है, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स बेसिकली नॉर्मल से निकला है, जो कि हमारे पास एक कोई भी ग्रुप हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसमें जो ज्यादातर अफराद जिन रूल्स को, जिन वैल्यूज को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं और उस पर अमल कर रहे होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, नॉर्म का। जैसे हर हर सोसाइटी की कुछ ना कुछ नॉर्म्स होती हैं, हर कल्चर की कुछ ना कुछ नॉर्म्स होती हैं। इवन अगर हम बात करें ग्रुप की तो हर फैमिली की कुछ ना कुछ नॉर्म्स होती हैं। कम्युनिकेशन, जब हम ग्रुप वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा कि जी कम्युनिकेशन पैटर्न्स क्या है, किस तरह से उस ग्रुप में बातचीत की जा रही है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट क्या है, लीडरशिप कैसी है या किस तरह की लीडरशिप पसंद की जा रही है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, पावर का एलिमेंट। और क्योंकि ऑब्वियसली एवरी ग्रुप हैज इट्स पावर्स, मे बी द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी शामिल हो, तो ग्रुप से का जहां तक ताल्लुक होगा तो हम उसको रिलेट करेंगे इन तमाम के तमाम एलिमेंट के साथ। फिर हम अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वेरिएबल में क्या होते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की अगर हम बात करें तो वो शेयर्ड वैल्यूज जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके एम्प्लॉयज अमल करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर अमल करवाती है और वो तमाम का तमाम कल्चर जो है वो उसको अडेप्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर एचआर पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के जी एचआर जो है वो किन किन चीज़ों पर एम्फेसाइज कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस, यानी जिसमें लाइफ सपोज आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप वहाँ पर जैसे ही एंटर होगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा यार सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा है, या हेल्थ सेफ्टी के तमाम पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है। वेरी सिंपल, आजकल का जो एक करंट अगर हम सिनेरियो में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोरोना सेफ्टी के तहत बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा वॉक थ्रू गेट आप जैसे एंटर होंगे, सैनिटाइजर्स, मास्क लाजमी होगा, अगर आपने मास्क वेयर नहीं किया होगा तो या तो वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको कहेंगे कि जी विदाउट मास्क जो है वो एंट्री मुमकिन नहीं है। फिर जब आप एंटर हो जाओगे तो वो आपको हैंड सैनिटाइजर आपको नजर आएगा। फिर आपके पास आपको वॉक थ्रू गेट एक नजर आएगा, जिसमें से आप गुजर कर जब जाओगे तो वो जर्म्स फ्री आपको करेगा। यानी जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो एचआर प्रैक्टिसेस जो हैं वहाँ की किस तरह की हैं और किस पर अमल दरामद करवा रही होती हैं अपने टीम मेंबर से भी और जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है उससे भी। ठीक है जी। अब हम इन तमाम के तमाम जो इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वेरिएबल्स इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं।
यहाँ पर अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जी इंडिविजुअल वेरिएबल्स की, तो एज यू नो वेरी वेल कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो तमाम लोगों में मौजूद होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स that vary from one person to another. It can be physical, psychological, or emotional. It characterizes you, make you unique. Personality, attitudes, and emotions play a major role. अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज कि आप तसव्वुर करें किसी भी एक ऐसी सिचुएशन का कि जहां पर आपने देखा हो कि एक पर्सन जो है वो उसी सेम सिचुएशन में रहता हुआ बिल्कुल कूल है और वो रिएक्ट नहीं कर रहा उस तरह से, और उसी सिचुएशन में जो है वो दूसरा पर्सन जो है वो बकायदा तौर पर चीख रहा है, चिंगाड़ रहा है. अब ये दो जो हमने लोगों की बात की, सिचुएशन सेम है लेकिन लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं. क्यों अलग अलग है? क्योंकि एक पर्सन जो है वो दूसरे से जो है वो डिफरेंस मौजूद है, जो कि उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बेसिस पर, जो कि उसके तमाम के तमाम फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेसिस पर, और इसके साथ साथ उसके जो पर्सनालिटी टाइप है उसके अकॉर्डिंगली चेंज है. आपने देखा होगा किसी भी सिचुएशन में, लेट्स सपोज अगर आपको फाइनल या प्रोजेक्ट का काम असाइन हो जाता है और टीचर अगर आपको कह देता है भाई ये तमाम की तमाम चीजें करनी होती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ आपके ग्रुप मेंबर्स जो बहुत दबाविला मचा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे क्या मसला है, इतना काम लगा दिया हमें, ये करना पड़ेगा, टेंशन हो रही है, टाइम कम है. और जो दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार ठीक है सही है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, काम असाइन किया है तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा. अब हमें देखना ये है कि हमने किस तरह से इस टाइम को हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग अ टास्क. हम अपने टास्क को डिवाइड करें अपने ग्रुप मेंबर्स पर और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं. यानी एक होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगा और एक है जो कि इमोशनल फोकस की तरफ जा रहा है. तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगा उसके एटीट्यूड्स अलग होंगे, और जो इमोशंस फोकस की तरफ है वो उसके एटीट्यूड जो वो आपको अलग नजर आ रहे होते हैं. तो यानी हम तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यूनिक हैं अपनी जात में. किस हिसाब से कि जी जिसमें कि हम बात करते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर. ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि जी लिखा हुआ है कि जी लॉट्स ऑफ रिसर्च लुक्स एट द टिपिकल और एवरेज पर्सन, बट व्हाट अबाउट द अनयूजुअल पीपल. Psychologists of individual differences study what makes people different by the help of, obviously there are the certain researchers those are working on that. What about the definition or the typical or the average person. uh, लेकिन जो अनयूजुअल लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे अगेन. और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि साइकोलॉजिस्ट जो है ऑब्वियसली तमाम तमाम चीज़ों पर कि जो एक पर्सन जो है दूसरे से कैसे डिफरेंट इसी पर काम कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस. उसको हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नाम देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट हमारे पास जो मौजूद होते हैं फैक्टर्स के जी तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल के वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, किस तरह से तमाम के तमाम फैक्टर्स पर अमल दरामद हो रहे हैं. अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि आपको यूनिक बनाते हैं. पर्सनालिटी, ऑब्वियसली पर्सनालिटी कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है. आप अगर हम बिग फाइव के मॉडल को देखें तो उसने 5 टाइप्स बताई हुई पर्सनालिटी. अगर हम MBTI के प्रेफरेंसेस में जाए तो उसमें मेन जो है वो 8 है, वो डिवाइड होंगे 16 में, एंड देन दीज डिवाइडेड इनटू 32. यानी हम किस तरह से पर्सनालिटी वाइज एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, हम ओपन टू चेंज हैं या ओपन टू चेंज नहीं है, हम इंट्रोवर्टेड हैं या एक्सोवर्टेड हैं, हम जो है वो चीज़ों को, लोगों को एम्पैथेटिकली या एम्पैथेटिक वे में असेस कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत सिंपैथाइज कर रहे हैं. यानी ये वो एलिमेंट है जो किसी भी पर्सनालिटी के लिए को समझने में मदद देते हैं, और ये तमाम के तमाम चीज़ें हमें डिफरेंट कर रही होती हैं बाय वन पर्सन टू अनदर वन.
इंटेलिजेंस ऑब्वियसली कुछ लोग का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का एवरेज बढ़ जाता है, कुछ लोग सम सिचुएशंस में डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो भी हमें यूनिक करती हैं। मोरल वैल्यूज आपको किस तरह से किन चीज़ों पर आपको बताया गया कि जी मोरल वैल्यूज आपके रिलेटेड टू क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ की परमिशन आपके मजहब ने दी है, किस चीज़ की परमिशन आपके मजहब ने नहीं दी है, आपके पास जो है वो आपकी सोसाइटी की या आपके कल्चर की डिमांड्स क्या हैं, आप जिस जगह जॉब कर रहे हो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रूल्स उसकी वैल्यूज क्या हैं और क्या नहीं है। तो तमाम की तमाम चीज़ें ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आता है। मेंटल हेल्थ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि हमें यूनिक बनाता है वो है हमारी मेंटल हेल्थ। आपने देखा होगा कि लोगों की मेंटल हेल्थ अगर खुदा न खास्ता खराब हो जाए, लाइक डिप्रेस पर्सन जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा विद इन अ सर्टेन कंडीशन। ऑन द अदर हैंड जो एक नॉर्मल पर्सन होगा जो जिसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होगी वो डिफरेंटली जो है वो बिहेव कर रहा होगा। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो अगर एंग्जाइटी में होंगे तो हर वक्त घबराहट का शिकार रहेंगे। ऑन द अदर हैंड जिसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होगी, कंटेंट पर्सनालिटी होगी और वो अपने आप को बेहतर तरीके से डील करना जानता होगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी पर आता है और ये आपको यूनिक बनाता है। इसकी वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आप देखो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से आप बातचीत करते हो तो आप बहुत आराम से बात कर लेते हो और आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है कि जी मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे वहां से जो है वो रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो सपोर्ट का मिलेगा। यानी वहां पर आप अगर बात डिस्कस कर रहे हो तो वहां पर आपके पास आपको हल मिलने अपनी बातों का अपने मसाइल का, तो ऑब्वियसली वहां पर उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर है रादर देन अगर आपने डिस्कस किया और वहां पर आपको डांट जो है वो सुनने को मिल गई या आपको एंक्शियस से रिलेटेड एलिमेंट्स मिल गए या आपको मजीद प्रॉब्लम को मजीद बढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियसली फिर वहां पर जब मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होती है किसी पर्सन के पास तो फिर आप वहां पर जाना जो है वो पसंद नहीं करते, आप उसको अवॉइड कर रहे होते हो। तो ये ही चीजें हैं जो कि आपको यूनिक बनाती हैं और जो कि जो दूसरा पर्सन उसको वो आपके बिहेवियर से असेस कर रहा होता है। रेस का कॉन्सेप्ट हम देखें तो ऑब्वियसली ये रिलेट करेगा आपके पास कि जी आप जैसे अगर हम यूरोपियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पर ब्लैक वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं। कल्चर ऑब्वियसली कि आपका कल्चर किस कल्चर से आपका ताल्लुक है, कल्चर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली लाइक हमारे पास सिंधी कल्चर है, हमारे पास पंजाबी कल्चर है, हमारे पास एक कराची का कल्चर जिसको कि उर्दू स्पीकिंग कल्चर कहा जाता है वो मौजूद है, बलूचिस्तान का कल्चर मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट दूसरे कल्चर्स भी मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क में शामिल हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें भी हमें यूनिक बनाती हैं। फिर आता है जेंडर, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर के आप मेल हैं फीमेल हैं, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो आपको एक यूनिक बनाती हैं जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। फिर हमारे पास सवाल ये उठता है कि जी वाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो अहम क्यों होते हैं और अ, इनका क्या जो है वो पॉजिटिव रोल हो सकता है। Individual differences have a different effect on behavior. People who perceive things differently behave differently. लोग जो है जब चीज़ों को परसीव डिफरेंट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो बिहेव जो करते हैं वो भी डिफरेंट कर रहे होते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक ही सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो चीखते चिल्लाना डिस्प्ले कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह जा रहा है। यानी जिस तरह से जिसने परसेप्शन किया, जो उसका परसेप्शन था उसने उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव किया। फिर अगर हम बात देखें कि जी पीपल विद डिफरेंट एटीट्यूड्स रिस्पॉन्ड डिफरेंट डायरेक्टिव्स, जिस तरह के जो है वो एटीट्यूड्स होते हैं उसी तरह से जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं। जो डिफरेंट पर्सनालिटीज के होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं
डिफरेंटली विद द बॉसेस, कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स और कस्टमर्स। आप देखा कुछ लोग बहुत काइंड नेचर के होते हैं, कुछ लोग बहुत ओपन टू चेंज होते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को जो है वो इस तरह से बातचीत करते हैं कि आप सारी सारी बात आप डिस्कस करते हो, आपको सुकून हो जाता है, ओके फाइन ठीक है सही है, हमारा हमने अपने इस पर्सन से, अपने इस कोलीग से बात कर ली है, तो हमें कोई ना कोई मसले का हल मिलेगा। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, जो कि हमें डिफरेंट बनाते हैं। इसको हम मजीद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम मजीद ए टाइप क्या है, बी टाइप क्या है, बिग फाइव ट्रेट्स कौन सी होती हैं, मार्स ब्रिक्स का कौन सा होता है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर हम देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस help explain why some people embrace change and other fearful of it। कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चेंज को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो उस चेंज को से डरते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, कि आपने देखा होगा कि जिस अब आज से कोई 20 साल पहले की अगर हम बात करें, कि अगर आपने देखो किसी ज़माने में कंप्यूटर हमारे पास ऑफिस वगैरह में आना शुरू हुआ, तो उसमें पहले हमारे पास मैनुअली काम होता था, तमाम का तमाम काम। अब हुआ जब कंप्यूटर्स को ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इनिशियली क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आई, को रेजिस्टेंस आई कि भाई कंप्यूटर एक नई टेक्नोलॉजी, किस तरह से होगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि जिन लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्टेंस दी, वो आगे बढ़ गए। जो लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सके, वो या तो पीछे रह गए, या फिर वो जो है जो एक स्पीड पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसके साथ काम नहीं कर सके। चेंज इतना जरूरी है कि जो एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आज के दौर में आप देखो तो जो करंट सिचुएशन है उसमें बिल्कुल हम तमाम पूरी जो दुनिया है उसमें हम लोगों का बिल्कुल कंप्लीटली लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है। स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन हो गए, आपने बाजारों में जाना है प्रिकॉशंस के साथ जाना है। यानी एक अगर हम देखें तो इंटायरली पूरी दुनिया में जो है वो चेंज आया है। और अगर हम देखेंगे भी, जिन स्टूडेंट्स ने उस चेंज को एक्सेप्टेंस दिया, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन टीचर्स ने उसको एक्सेप्टेंस दिया कि ओके फाइन ठीक है सही यार, अब तो इसको एक्सेप्ट करना ही है। इनिशियली डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्वालिटी, बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारी तमाम के तमाम जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम एक्सेप्टेंस देकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वेरी सिंपल, एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे पास आया था कि जी एक ज़माना, हर एक का वक्त आता है, मतलब उसमें जो टाइटल था वो था कि सबका वक्त आता है कि पहले था कि स्कूल्स में जो है वो मोबाइल फोन जो है वो नॉट अलाउड था, और अब मोबाइल फोन में स्कूल मौजूद है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। एक वक्त था कि जी आप स्कूल्स में जो है वो मोबाइल फोन जो है वो उसकी परमिशन नहीं होती थी, स्टूडेंट्स छुपा कर रख कर उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो तमाम का तमाम जो सेटअप हो रहा है, तमाम का तमाम सेटअप जो चल रहा है, वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू या मोबाइल फोन्स के थ्रू या लैपटॉप्स के थ्रू ही हम आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मैसेजेस जो कम्युनिकेट किए जा रहे होते हैं वो फेसबुक पे कम्युनिकेट किए जा रहे होते हैं, यानी इट इज द चेंज। तो वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं उनका इम्पैक्ट आता है। और ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो उस चेंज को एक्सेप्टेंस देते हैं, और कुछ लोग जो है वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि why some employees will be productive only if they are closely supervised, आपने देखा होगा कि जी कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, अगर उन पर जो है सुपरविजन जो है वो मौजूद हो, और हर चीज़ के लिए उनको किसी को रिपोर्ट करना हो। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बादशाहत के तहत दे रही थी, अपने काम से खुद ही काम करना है, ये तमाम चीज़ों के तहत काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग को वर्कर्स जो हैं वो सीखते हैं नई टास्क को, और वो उसको सीख कर आगे
बढ़ जाते हैं और अपनी जो जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनको बढ़ा लेते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता या उनके अंदर उन नई चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह से अगर हम बात करें एबिलिटीज और स्किल्स की, तो फर्स्ट क्या हम एबिलिटीज को किस तरह से डिफाइन करते हैं? एबिलिटी अ पर्सन्स टैलेंट टू परफॉर्म अ मेंटल और फिजिकल टास्क। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो टैलेंट होता है टू परफॉर्म अ मेंटल और फिजिकल टास्क, इट इज नोन एज द एबिलिटी। लाइक फॉर सपोज कुछ लोग जो है वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, लाइक फॉर सपोज कुछ लोग किसी एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं। तो जो उस पर्सन के अंदर एबिलिटी मौजूद है, जो उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, उसका नाम लेते हैं एबिलिटी का। दे आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज। वन इज द मेंटल एबिलिटीज, जो कि ऑब्वियसली रिलेट करेगी हमारे मेंटल प्रोसेसेस है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि जी इंटेलिजेंस की, जिसमें कि हम बात करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, यानी उसके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है, वो उसको किस हिसाब से कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगेन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट सिचुएशन, देयर आर द 5 स्टेप्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे जी, कोई भी पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन हैंडल करते हुए किस तरह से एम्पैथेटिक रोल में रहते हुए सामने वाले के साथ बिहेव कर रहा होता है, स्पेशली विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ नॉलेज होती हैं जो कि नॉलेज होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जिसको कि आप बाय द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस, बाय द हेल्प ऑफ योर इंटरेस्ट जो है वो सीखते हो। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली हमारी रिलेट करती हैं एबिलिटीज से। जहाँ तक ताल्लुक है स्किल का, तो स्किल इज अ लर्न टैलेंट दैट अ पर्सन हैज एक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। स्किल्स क्या है? लाइक सपोज टेक्निकल स्किल्स क्या है कि आप जिस भी टेक्निकल फील्ड में आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, या आप जिस भी टेक्निकल फील्ड को पढ़ रहे हो, तो आप उसको बाकायदा तौर पर सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म कर सको। एटीट्यूड्स की अगर हम बात करें, तो एटीट्यूड्स आर डिटरमाइंस ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज दे आर लिंक्ड विद परसेप्शन, पर्सनालिटी, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। Attitudes is a mental state of readiness, learned and organized through experience, which are related to the specific response to people, object, or situations with which it is related. एटीट्यूड्स क्या है कि मेंटल स्टेट आपकी, कि आप किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में रहते हुए आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सिचुएशंस में, जो कि आप सीखते हो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। जहाँ तक ताल्लुक है हम एटीट्यूड्स का, तो एटीट्यूड्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद द परसेप्शन, पर्सनालिटी, फीलिंग्स और मोटिवेशन के। परसेप्शन, जहाँ तक ताल्लुक है परसेप्शन का, तो परसेप्शन की अगर हम बात करें, तो परसेप्शन रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ what we take through our senses, by the help of our senses, like for suppose visual, auditory, kinesthetically, uh, through smell। हम जो कुछ भी अपने सेंसेस की बेसिस पर हम जो कुछ भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसको हम परसेप्शन का नाम देते हैं। और यूजुअली परसेप्शन जो है वो विजुअल सेंस के साथ जनरली जो है उसको समझा जाता है। It involves deciding which information to notice, how to categorize that information, and how to interpret it within the framework of existing knowledge, shape options, decisions, and actions। इसको अगर थोड़ा समझते हैं, तो आपने देखा होगा कि जी परसेप्शन की अगर हम बात करें, या परफॉर्मेंस अप्राइजल के बाद कुछ लोग जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। या एक और इसकी एग्जांपल देखा होगा आपने कि ड्यूरिंग द मीटिंग्स कुछ लोग जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर देते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं।
तो अब जो लोग उनको देख रहे हैं या जो हायर अथॉरिटीज वगैरह हैं, उनके पास क्या मैसेज कम्युनिकेट होता है कि हाँ भाई ये तो बहुत इंफॉर्मेशन है इस बंदे के पास, ये बहुत इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने उस पर उसको मास्टरी है। क्या कि जो कुछ उन्होंने देखा सुना, जो कुछ उनको प्रेजेंट किया गया, उस प्रेजेंटेशन की बेसिस पर ही, जो कि उस पर्सन की पर्सनालिटी से, उसके उसके बोलने से, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल से, उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यू से, उसके जो है वो नॉलेज जो वो जो डिस्प्ले कर रहा है उससे, तो उस तमाम की तमाम बेसिस पर जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग हायर अथॉरिटीज स्पेशली जो मौजूद हैं, वो परसीव कर रही हैं उसको एज अ वेरी इफेक्टिव टीम मेंबर। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अहम रोल अदा कर रही होती हैं विद ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। और इसमें ऑब्वियसली आपके शेप अप करते हैं आपके ओपिनियंस को, आपके डिसीजंस को और आपके एक्शंस को। द फर्स्ट लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है? पीपल आर डिफरेंट। What one person consider a golden opportunity, another consider as a threat. कुछ लोगों ने लाइक अगेन कोरोना की एग्जाम्पल जो आजकल चली हुई है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। कुछ लोगों ने इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दैट सेंस लिया कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और वो बहुत आगे जो है वो बढ़ गए। कुछ लोगों ने जो है वो इसको एक खौफ की अलामत बना लिया और वो स्टक हो गए, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बहुत लोग जो बहुत सारा कुछ कमा गए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से कंसीडर करें। अगेन ये हम जब परसेप्शन की बात करते हैं तो ये रिलेट करते हैं हमारे परसेप्शन के, हम जो सिचुएशन है उसको हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं। परसेप्शन, पीपल परसीव द वर्ल्ड यूनिकली। हर पर्सन जो है वो उसको दुनिया को यूनिकली परसीव कर रहा होता है। differences in perception can cause problem. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में एक पर्सन जो है वो अपनी जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो एक्सपीरियंस है या जिस तरह से वो देख रहा है या जो जो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, उसे अकॉर्डिंगली जब कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो जब डिफरेंट परसेप्शंस आ रहे होते हैं और जहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे होते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कम्युनिकेशन में लाइक कोई बातचीत हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन साइड पर है, तो एक कहेगा कि मेरा परसेप्शन ये था, दूसरा कहेगा मेरे मैं तो बात ही नहीं कर रहा था, मेरा तो परसेप्शन अलग था। यानी दोनों ने जिस जिस के हवाले से उसको इंटरप्रेट किया वो उसके अकॉर्डिंगली ही लेकर ही डील कर रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली तमाम चीजें जो है वो शामिल होती हैं। ओके क्लास, पर्सनालिटी। How we define the personality? Personality is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others. पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी क्या है कि एक सम है किसी भी इंडिविजुअल के रिएक्शन का और उसके एक्शंस का जब वो दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है विद इन द सोशल सेटअप। यानी किस तरह से क्या उसका अपीयरेंस है, उसका कदोकाल है, उसका बात करने का अंदाज क्या है, किस तरह से बातचीत की जा रही है, वर्ड्स की सिलेक्शन क्या है, नॉन वर्बल क्यूज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉलेज क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ओपन टू चेंज है या नहीं है, किस तरह से चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा रहा है। अब ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है या इमोशनल फोकस एटीट्यूड है। अब ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं जब हम एज द होल इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं किसका? पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। हर एक पर्सन की ट्रेट्स जो है पर्सनालिटी की एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं आमतौर पर, और वो जो है ऑब्वियसली कैरेक्टराइज कर रही हैं उस एलिमेंट को जो हमने यूनिकनेस की बात की थी। पर्सनालिटी के डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें, देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। द वन इज द हेरिडिटी, सेकंड वन इज द एनवायरनमेंट एंड द थर्ड वन इज द सिचुएशन। थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट अबाउट दीज फैक्टर्स।
जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इन फैक्टर्स का कि जी हाउ इट वर्क्स, तो हेरिडिटी क्या है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दोज आर ट्रांसफर फ्रॉम द फोरफादर्स, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि हमारी शक्ल सूरत का दुखाल, बालों का कलर, इसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आपका कुछ जगहों पे डिसऑर्डर, डिजीजेस, आपका बातचीत करने का अंदाज, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो हेरिडिटी से ट्रांसफर हो रही होती हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट जो हेरिडिटी से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इन्वायरमेंट क्या है कि जिस जगह पर कोई भी बच्चा जो है वो आँख खोलता है, उसकी फैमिली, वहाँ के रोल, कौन कौन लोग मौजूद हैं, उनके रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं है, अब ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो पर्सनालिटी बना रहे होते हैं। फिर जो है वो उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसको एक्सेप्टेंस कैसे मिली है। आपने देखा होगा जो एक आम तौर पर कहा जाता है कि जी बिहेवियर्स आर लाउडर देन वर्ड्स। आप देखते हो कि जिस तरह से आप बिहेव कर रहे होते हो बच्चे भी वैसे बिहेव कर रहे होते हैं। और ये जो है ये बच्चों की पर्सनालिटी को बनाने में अहम तरीन रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद आएगा सिचुएशन। बास दफा हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है वो हम रिएक्ट कर जाते हैं, कोई भी शख्स जो है वो रिएक्ट कर जाता है, तो वो सिचुएशन भी उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। और बाद में जब हमें उस सिचुएशन का पता चलता है कि जी ये रीजन थी, तो हम फिर हमारी राय जो है वो भी चेंज हो जाती है। अगेन वो परसेप्शन से रिलेट करेगा। लाइक सपोज के अगर आप देखें कि आप एक लेट सपोज कि चले हम एग्जांपल देते हैं कि आप एयरपोर्ट पर खड़े हुए और कोई भी पर्सन जो है वो बहुत स्पीड में आ रहा है, वो आपको धक्के देते हुए आगे निकल रहा है। तो आपका जो पहला रिएक्शन आएगा कि क्या बदतमीज आदमी है, इसको तमीज नहीं है, इसको उसको जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे ही लम्हे आपको पता चले कि अब बोर्डिंग का टाइम जो है वो उसका खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है, कोई आपको बता दे या वो ही भागते हुए कहते कि यार बोर्डिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सॉरी यार, कहते हुए आगे निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो उस सर्टेन सिचुएशन में जो बिहेवियर आया उसके अकॉर्डिंगली आपने तो देखा पहले, और फिर जो बाद में आपने उसको पहले जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया, और बाद में जो आपने एनालाइज किया डिफरेंट होगा। थी तमाम के तमाम एलिमेंट और सिचुएशन का मैं एक और चीज और डिस्कस कर दूं कि सर्टेन सिचुएशन में कुछ लोग पर्सनालिटी वाइज डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। लाइक सपोज जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ लोग जो है वो कोरोना से डर कर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन तो जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने सिर्फ डर का शिकार हुए और वो पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन का शिकार हुए। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आइसोलेटेड रहकर ही उन्होंने जो है वो अपना काम आगे बढ़ाया। सो स्टूडेंट आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।